진정脆路给那将人家那边没能知你，你的地基跟到不念愁，给我的人家最下拉的。给我的人家最下拉的。更中比把勇气呀苏西的，怎里能比去给呀不记仇，里面的你我的。News Auckland zigan lagi sama sa test dile. Kadesh freedom trail chit kochu ya plang grung odo degeni. Desuk lokhes nis nana kyawrimuche. Rang kega pang yaksi ngata otsumbar kyagar phek kochu odo dirasambur oche chik ya ata kinzamiti mare binang phyo yaksi binang kuja thi oyo chudang mo jum chu kuja ngi pichiti oyo gorzam ga jum sumbuchiti shakti ga jum chu 시피치티 룽가체주 추다 량메치티 당 모두 태가지고 나 통량거 주약스 가르다 뭐야 괜찮은데 걔네 좀 나서 상게 요dim나 디핍가 넘버 동아사 디핍 넘버 우스 수점될 뉴스과 다 진짜 가다 저다 가다 겨이신을 약말 우스 상당만 피본 것도 티야 쭉 가다 그냥 책은 어쩌네 쭉 따오 가다 그다 뭐 드랑선다 인디펜던스 타워야 이게 막 우스 상당하게 다 피본 것도 티야 우측 땜밀 타워 강아리 니는 것도 되고 쭉 우측 다니는 것도 되고 쭉 쭉 문당 다 다른 것 세컨 것도 임세컨 에디션 어쩌다 중 판능 넘어가는 중 판능 주럽 티랑 문어야 가 미망스랑 데비야에게 우측 미망스 나 나고 아야 본인에게 대 참은 남당하나 리고 요래 닥션나 미가 비부감스 단나네 도체 좀 니는 그나 대겨 계셔디 단네 좀 미망상게 창모처럼 테스딜링에 닌 투지징에 줄고 어쩌다 도체 가다 우스키 가다 투리즘기 해버디 ዝ라소ኝ네 니능네 니능 딱제 또 네지 어여 겐즈미니 짓나나다 문anga 당 비시빌리나 어여 수가게 들문음 어제다 겐즈미니야 가당 명토솔도 수가 우가 게겐 문메라 라더름노 아르메시 어제 죽닌 데닝다 나 CMC님다 셉샤칸 베타네시야야 알메나네 pom바야야 저 어여 겐즈미니기다 투리스트닝 담미가 당다 네거보다 이케르데다 게육티 파르미션 베냐 벌쭉 죽나 알메나이 다또 무슨 락팅어도 되게니 어제 겐즈미니기 어여 당다 시빌리나 통야 어주고 어쨌든 또 네이제 어요 투리스 디닝네 구닝 니닝네 디닝 그래서 또 네이제 가다 어요 겐즈미니 그 투리스 동자 지두고 모두 되오니 어째 니닝 프리덤 때 약속 지켜버다라서는 또 티제랑 저 투리스 동자 집게 모두 되오네 우스게 당가다 저 스피리추얼 투리즘 케바 토카타 케바 템데라 마니스 만나 어째 심자 참는 신 어째 두다 프리덤 텔링 주다 두노 주다 주기에 주 컨티뉴 야이 우티가 낙투시 된다라 어째 뜻이지
enak miang silo
자마치더니 자마치든요. 우측 대지도 물질 이낙 나다인요. 프리덤 제일. 흰 나다 흰. 예, 우측 다데 이낙 세마 출고거든 나가. 하나 세마 다들 때제 개베 예신을 보나 약 말아직. 곧 말아 다니 냐미 동 직 다니 나가 셈냐 코나 스마나 데고 심 개바상 프라이 삼등 하나. 예와. 주다나 슈비도 물질 이낙 그 정도와. 다 슈비도 물가 양 하나 오자야 다니 나가 이사막 네. 직 다 렘바디야 손에 직 하나 개베 예신을 보셔 소반 답 다니 나가 이길라. 예와. 그래서 도지치. 정말 뜻이래. 아니 인가밍래 럽상 분소. 아니 인가 남들 책니 제레즈가 댄스게서이 샤베 세베반도 땡큐지. 지레시 오에 댄스가 Shopie sibie para tue la tinguro che tujana What is your name? My name is Tenzin Begi. So how was your experience in this second edition of Freedom Trail? About the experience that I have gained, it's I cannot express this in words because the experience we gain, we can feel it to our mind. The route that His Holiness the 14th Dalai Lama had chosen at the year of 1959 when he had escaped from China. China, it means now Tibet from our India. It is initiated by our Honorable MLA Madam Sring Hamu, and in the memory of our 14th Dalai Lama, how did he had experienced lot of difficulties His Holiness the 14th Dalai Lama had faced. Now, as we have come from the route which His Holiness has chosen, routes are very difficult. Some are very easy, but most of the routes are very difficult. It had not been changed since from 1959 to yet now. And the experience we have gained, I have got so many good companions as, what to say, the Geshe-la, Geshe Champa Chilela. I'm very fortunate to have such a Geshe-la who have working from Kensamani to here, the forum of His Holiness the 14th Dalai Lama at Tawang. And I'm very fortunate to follow His Holiness, part of His Holiness. His Holiness, not only the religious teacher, he always uses to teach beyond the religion. तो आपका ये दूसरा फ्रीडम ट्रायल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो आप सभी को टैशी दिले एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब हम लोग वहाँ से बस्ती वाला रिसीव करता था तब हिज होलीनेस जो कितना तकलीफ से वहाँ से आया था वो महसूस हो रहा था। और जब हम लोग वहाँ किन्सामानी पहुँचा था उस वक्त हम लोग ने एक हिज होलीनेस का एक वीडियो देखा था। उसमें जब हिज होलीनेस को गोरा में पहुँचा के जब जा रहा था रिटर्न हम लोग को डिपीट के लोग, तो उन लोग वहाँ पे जब हिज होलीनेस ने जब उन लोग को पीछे मुड़ के देखा था तो हिज होलीनेस ने खेंची कर लिया था कि अभी आगे जाके ये सब साथ में हम लोगों के साथ नहीं रह पाएगा हम लोगों के साथ में। इसलिए तो वो कितना दुख से और कितना तकलीफ़ से है कि आया है रास्ता में, वो सब हम लोग ने महसूस किया है। और जब बस्ती वाला रिसीव करता था तो हम लोग को दिल में भी ऐसे लगता था कि अभी वो कितना दुख से जब यहाँ आया था, आने के बाद में आया था तब वहाँ से उसको हम लोग को जितना अभी लोगों ने रिसीव किया है तो उस वक्त तो शायद हिज होलीनेस को कोई रिसीव करने वाला नहीं था। तो वो कितना बीमार से कितना तकलीफ़ से वहाँ से आया है। जब हम गया साल गया था वहाँ का बस्ती का भैया लोग ने बहुत कुछ बताया था कि हिज होलीनेस यहाँ से आते हुए कितना बीमार होकर बस्ती में पहुँचा था और वो कितना दर्द से आया है। और बस्ती में आके भी वो इतना बीमार में आते हुए भी उसने मतलब अपने बारे में और टिबेट के बारे में बताने से वो लोग ने पीछे नहीं हटाया। वो लोग आया है और उन लोगों को बताया है, उन हर किसी को शिक्षा दे के गया है कि हर किसी को अच्छा बोलो, अच्छा करो। उसके बाद में थैंक यू। ये आपका पहला बार था ना? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है जी। तो और हमने सोचा है कि और ये थर्ड टाइम होगा तब हम उसमें पार्टिसिपेट करेगा। थैंक यू। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी बस्ती वाले आपको रिसीव करने वाले थे, वो चिबितम के हो या शक्ति के हो या टोंगलिंग के हो, तो उन सभी बस्ती वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट हमको वहाँ में
चुदुंगमू में वहाँ पे जो हमारे आर्मी थी देश के, उन लोगों ने हम लोग को बहुत अच्छे से वेलकम किया। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। उसके बाद वहाँ से बोर्गेनथांग विलेज हो गया, उसके बाद लुमला हो गया, शक्ति हो गया, थोंगलेंग हो गया, और यहाँ आके जो तवांग वाला ने, हर बस्ती वाला ने बहुत अच्छा से हम लोग को रिसेप्शन किया और हर लोगों ने हम लोग का बहुत अच्छा से ख्याल रखा। इसलिए मैं सभी बस्ती वालों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू। 6 दिनों के इस कठिन और ऐतिहासिक यात्रा के बाद आज हम अपने अंतिम पड़ाव तवांग में आ चुके हैं। केंजामानी से शुरू हुए इस यात्रा में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर बहुत सारे संघर्षों का सामना करके उन्होंने इस फ्रीडम ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो ये फ्रीडम ट्रायल जो है ये एक ट्रेल ही नहीं, पर ये उस इतिहास का एक हिस्सा है जब 1959 में हमारी भूमि पर हमारे धर्मगुरु, हमारे मूल गुरु परम पावन दलाई लामा जी ने उनके चरण स्पर्श किए। तो आप सोच सकते हैं जब एक व्यक्ति अपने देश को छोड़कर आता है, जब एक व्यक्ति अपने लोगों को छोड़कर आता है, तो उसके मन में कितना दुख हो सकता है। तो उसी तरह परम पावन दलाई लामा जी भी अपने बहुत ही दुखी होकर यहाँ पे हमारे देश में पधारे थे। तो 1959 में वे केंजामानी से होकर चुदांगमो, गोरजम और शक्ति और लुमला और थोंगलेंग और तवांग होकर आए थे। तो इस ट्रेल के दौरान हमें ये जानने को मिला कि हमारा इतिहास क्या है। इस ट्रेल के दौरान हमें वो अनुभव करने को मिला जो हमारे परम पावन दलाई लामा जी 1959 में इन गाँव में आए होंगे। तो जो हमारे गांव वाले थे शायद वो बहुत गरीब भी हो सकते हैं, पर उन्होंने पूरे दिल से उनका स्वागत किया होगा, पूरे डिवोशन से उनका स्वागत किया होगा। तो इसी तरह जो ये सेकेंड एडिशन ऑफ फ्रीडम ट्रायल है उसमें भी हमें ऐसा ही अनुभव हुआ, ऐसा ही महसूस हुआ कि हमारे जो लोग हैं उनका जो हमारे परम पावन दलाई लामा जी के प्रति जो डिवोशन है वो बहुत ही बड़ा है, वो सागर से भी गहरा है। हर गांव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं दलाई लामा जी पधार रहे हैं। सब उनके जो पिक्चर है उसमें माथा टेक रहा था। सब उनके कुपर को देखकर उसमें माथा टेकने जा रहे थे और बहुत सारे लोगों के आंखों में तो हमने आंसू भी देखा। और बहुत सारे ऐसे जो हमारे एल्डरली पर्सन थे तो उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। तो इससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे मन समाज के जो लोग हैं उनमें सही में हमारे जो मूल गुरु दलाई लामा जी हैं उनके प्रति सागर से भी गहरा डिवोशन है। तो इस ट्रेल के वजह से हमें इतिहास के बारे में जानने को तो मिला ही, साथ ही साथ इस ट्रेल के माध्यम से हमने अपनी संस्कृति को भी जाना। जब हम ट्रेल से आ रहे थे तो बहुत सारे गांवों में नृत्य, गाने दलाई लामा जी को अर्पित किया जा रहा था। तो इन सब को देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारा जो मॉन्यूल है कितना खूबसूरत है, हमारा जो कल्चर है कितना खूबसूरत है। तो इसी से हमें ये भी समझ में आता है कि हमें अपना कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। तो इस ट्रेल को पूरी तरह जिनके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है वो है हमारे विधायक सेरिंग लामो जी और उन्हीं के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड एकेडमिक और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया। और इस साल ये जो ट्रेल है, फ्रीडम ट्रेल है, जो सेकेंड एडिशन ऑफ फ्रीडम ट्रेल है, वो सफलतापूर्वक ये पूरा हुआ। और हमारे जो माननीय विधायक है उन्होंने कहा है कि ये जो फ्रीडम ट्रेल है ये एक कैलेंडर इवेंट होगा, तो ये दूसरे साल से भी होगा। तो मैं सभी हमारे जो दर्शक हैं उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ये फ्रीडम ट्रेल एक ट्रेल मात्र ही नहीं, पर ये हमारा इतिहास को दोहराने,
हमारे संस्कृति को बचाने का एक पहल है। तो इसीलिए आप दूसरे साल इस ट्रेन में ज़रूर जुड़िए, जितना हो सके ज़्यादा जुड़िए और हमारे कल्चर को जानिए, हमारे इतिहास को जानिए। और इसी तरह हमने इस साल हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको जितना हो सके आपको ये ट्रेल के बारे में आपको दिखाया। जितना हो सके हमने इंटरव्यूज़ जो हमारे एल्डरली पर्सन थे, जो कि 98 ईयर्स ओल्ड, 94 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर्स ओल्ड, जितने भी हमारे एल्डरली पर्सन थे जो उस समय में जीवित थे, उनसे हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की और हमें बहुत सारे एल्डरली पर्सन भी मिले और उन सब इंटरव्यू को मैंने हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको दिखाया। तो इसी तरह हम ऐसे काम करते ही रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। और आखिर में मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप दूसरे साल फ्रीडम ट्रायल में ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।